molecular orbital theory. This is another theory. It's regarding the bonding of covalent molecules. This theory was given by, देखा है बुक उसमें किसने दी? And Newton. Molecular orbital theory was given by Hund and Newton in 1932. This theory is actually explaining the stability of a covalent molecules. बट इसमें क्या है, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद होगा कि ऑर्बिटल की मैंने एक बार डेफिनेशन बताई थी. ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या है, याद है किसी को? Where the probability of finding the electron is maximum. तो यहाँ पर भी ऑर्बिटल्स की ही बात है. यहाँ पर क्या है, according to molecular orbital theory, the atomic orbitals combines with each other. Yes, sir. Mix with each other or act with each other. They will result in the formation of a new set of orbitals. They are known as molecular orbitals. So accordingly, this theory is regarding the formation of molecular orbitals By the combining of molecular orbitals. तो होता क्या है इसमें, अगर हम इस थ्योरी की जनरल जो पास्टुलेट्स है, फीचर्स, वो क्या है, इसमें जो सैलेंट फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या है, तो डायरेक्टली स्टार्ट विद पास्टुलेट्स. पास्टुलेट्स क्या है इस थ्योरी के, और सैलिएंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MOT. हाँ, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टर्स. द वेरी फर्स्ट वन इज atomic orbitals combine each other or mix each other. That will result in the formation of molecular orbitals. तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट वन इज combination of किनकी, combination of AOs stands for atomic orbitals. That will result in the formation of new set of orbitals. They are known as molecular orbitals. तो ये सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक ऐसी थ्योरी है जो किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं. समझ आ रहा है? फर्स्ट पास्टुलेट. नाउ द सेकंड, लास्ट में बताऊंगा, आप लिखोगे उस टाइम. फिलहाल मैं जनरल में बता रहा हूँ कि पास्टुलेट्स क्या है. सेकंड पास्टुलेट की नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड. नंबर ऑफ द atomic orbitals combines. Number of atomic orbitals combine. That means number of atomic orbitals combining. तो उसकी वजह से क्या होगा, जितने कंबाइन हो जाएंगे उतनी ही जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो बनेंगे. That is the number of atomic orbitals combining is always equal to the number of molecular orbitals formed. समझ आ रहा है मैंने क्या कहा? That means the number of atomic orbitals combining will always give equal number of molecular orbitals. अब next postulate क्या है? Third one is the number of molecular orbitals formed. Number of molecular this MOS molecular orbitals. The number of molecular orbitals formed. ये वाले number of molecular orbitals formed. Third postulate. Half of them किनका? Molecular orbital. Half of the molecular orbitals are bonding. समझ आ रहा है?
and the rest half of their molecular orbitals are anti-bonding. क्या है? So we will get कितने types? Anti-bonding molecular orbitals. और we can say जब भी atomic orbitals combine हो जाएंगे उसकी वजह से हमें क्या बनेंगे? जितने कंबाइन हो जाएंगे उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगी. लेकिन उसमें क्या होगा? वी हैव टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे. समझ आ रहा है? एक होगा कौन सा? बॉन्डिंग होगा. और जो दूसरा होगा वो कौन सा होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. अब डिफरेंस क्या है? दो अलग अलग क्यों है? इनका जो ये नेमिंग सिस्टम है वो डिफरेंट क्यों है? अब मैं इसकी बात करूंगा. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मैं शॉर्ट में लिखूंगा. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर lower in energy. किसमें? Lower in energy. Or you can simply write like this: lower in energy and have high stability. Lower in energy and high stability. किनमें? कौन से? बॉन्डिंग वाले. और जो नेक्स्ट होंगे एंटी बॉन्डिंग होंगे. एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर हाँ क्या है? हायर इन एनर्जी बट स्टेबिलिटी क्या होगी? हायर इन एनर्जी एंड लोअर इन स्टेबिलिटी. एस स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी. समझ आ रहा है क्यों दो टाइप्स कर रहे हैं? एक बॉन्डिंग होगा और दूसरा जो होगा वो एंटी बॉन्डिंग होगा. So in general, the number of atomic orbitals combined is always equal to the number of molecular orbitals formed. But उसमें क्या है? Half of them are bonding molecular orbitals, the rest half of them are anti-bonding. अब bonding और anti-bonding में क्या फर्क है? Bonding molecular orbitals lower energy. Because of lower energy, they are stable. They are stable. Whereas those having high energy, they are less stable. They are less stable. The next postulate इसका है 4. Now the fifth one. Fifth one is both atomic and molecular orbitals. No. Before that, we will take one more postulate. Atomic orbitals are monocentric, but molecular orbitals are polycentric in nature. समझ आ रहा है? कुछ नहीं. मैं ऐसे लिखूंगा. Molecular orbitals are polycentric, while atomic AOS are हाँ क्या है? Monocentric. Monocentric उसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि जब भी atomic orbitals combine हो जाएंगे, क्योंकि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में एक ही न्यूक्लियस होता है. समझा रहा है? बट जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे कॉम्बिनेशन किन के हो जाएंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स. दैट विल गिव अस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में एक न्यूक्लियस होता है. जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा कहां से? दो एटॉमिक ऑर्बिटल से. उसकी वजह से उसमें क्या होंगे? एक से ज्यादा न्यूक्लियस. सो दैट इज व्हाई वो पॉलीसेंट्रिक होंगे. और एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? मोनोसेंट्रिक. ये वाला पोस्टुलेट है. नेक्स्ट sixth postulate, both bonding as well as anti-bonding, or simply molecular orbitals are also filled in accordance in increasing order of energy. In increasing order. यहाँ पर increasing order of energy. What does that mean? N plus L रूल याद है? Yes. वो क्या कह रहा है? शेल्स की बात ही नहीं है. एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात है. वहां पर वही ऑर्बिटल पहले फिल हो जाएगा जिसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी. सो दैट इज व्हाई मैंने क्या लिखा? जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है दे आर फिल्ड इन अकॉर्डिंग ऑफ ऑफ प्रिंसिपल और सिंपली n plus L रूल. सो दे आर फिल्ड इन किस हिसाब से? इन n plus L fashion और सिंपली इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. किसमें? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. द ऑर्बिटल हैविंग लोअर एनर्जी विल बी हाँ क्या होगा? फिल फर्स्ट. और जिसकी ज्यादा होगी वो कब होगा? लास्ट में फिल हो जाएगा. नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है, नाउ द सेवंथ वन, the pairing of electrons in molecular orbitals takes place only
कब हो जाएगी? When all the molecular orbitals are partially filled first. Yes, sir. जब क्या होंगे? Partially. पहले partially filled हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएगी क्या? Pairing. Yeah. Likewise जिसका क्या होता है? Atomic orbitals में था। Yes, sir. तो वो कौन सा रूल है? याद है आपको? याद है? Yes. कौन सा रूल है वो? एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड पार्शियली फर्स्ट, बट उसके बाद जब सारे पार्शियली फिल्ड हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगी? पियरिंग। ये कौन सा रूल है? वो याद ही नहीं है, क्या हो गया आपको? कौन सा? Hond's rule. So the molecular orbitals are also filled in accordance with किसके हिसाब से? Hond's rule के हिसाब से। Molecular orbitals are filled in accordance with, शॉर्ट में अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि molecular orbitals are filled in accordance with the Hond's rule। समझ आ रहा है? Yes, sir. और इन जनरल अगर मैं ऐसे भी बता सकता हूं कि एक ही postulate, these molecular orbitals like atomic orbitals they are filled or they follow, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, they will follow all the principles, that is Avogadro's Pauli's principle or Hond's rule। समझ आ रहा है? They will follow all the three principles, जिस तरह कौन फॉलो कर रहे हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक Orbitals. आप कितने पास्टुलेट हो गए? ये पास्टुलेट है इसके, पहले आप लिखो पास्टुलेट, उसके बाद हम